ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो दिल का खूबसूरत हो, ऐसे लोग खुदा ने बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। So, a very good afternoon, respected principal ma'am, deputy director sir, vice principal sir, and my all dear colleagues. As we know very well, mentors talk session is going on under the supervision of Mr. Ravi Kumar. I don't think I am writing if I will say Ravi Kumar is theatre of resource person. We get too much knowledge from session given by Mr. Ravi Kumar, Mr. Ankush Beniwal, Mrs. Navneet Devgan and Mr. Ravi Kumar. I welcome you all in today's workshop. It's great pleasure for me to introduce our today's resource person, Mrs. Harpal Kaur. She is working from at the very first day of IISc. Harpal Kaur is highly qualified with MA English and B.Ed. She was awarded for Best Handwriting Award in 2019. She was Assembly in charge in 2022 and 23. And she was Activity in charge in 2023 and 24. She is award winner as a proactive teacher. She is awarded in Pan India Teacher Award by OU. Now it's time to invite our today's resource person on the stage. I would like to request our principal ma'am, Mrs. Navneet Devgan ma'am, and vice principal Ankush Beniwal sir and deputy director Ravi sir to come forward and honor our resource person, Mrs. Harpal Kaur with flowers. I would like to invite Mrs. Harpal Kaur ma'am, please come forward and deliver your valuable thoughts. Thank you. Respected Principal Ma'am, Vice Principal, Deputy Director and my teammates, a very good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. First of all, I would like to thank you to my senior fellows to giving this opportunity to conduct this session. So now I wanted to take a moment to express my sincere appreciation for Mr. Ravi Kumar for his hard work and dedication. Dear sir, your commitments to excellence not only inspires those who are around you but sets a remarkable standard for our team. Thank you sir for your guidance and I want to say some few lines for sir. क्या शब्द लिखूं, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं आपकी आन बान और शान में, क्या कहना काफ़ी ही नहीं इतना कि आप सबसे कमाल हो इस जहान में, आप सबसे कमाल हो इस जहान में। जिसे कहते हैं ना कि फरिश्ता भेजा है भगवान ने, तो मैं आज दिल से कोई भारी वर्ड लेके नहीं मैं सर की तारीफ कर रही हूँ। मैं दिल से ये कहना चाहती हूँ कि जब से सर ने इंपीरियल स्कूल ज्वाइन किया है, हमारे स्कूल का जो कहते हैं ना पासा ही पलट गया है। एक भगवान ने इनको एक फरिश्ते की तरह भेजा है कि जिससे हम अभी यहाँ सभी इकट्ठे हुए इतनी आगे जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज डेडिकेशन ऑफ मिस्टर रवि कुमार. So I want to give just token of gratitude to Mr. Ravi Kumar. So sir, I request you to come forward and accept my small token of gratitude. Now coming to our today's topic, 10 undefined duties in school. Teachers, you know all that teaching is a noble profession. We can say that hidden duties of a teacher and its central object is A+ teacher.
I hope we will all grade it in A+, right? Yes, ma'am. As you know that teaching is a noble profession and we all are best teachers, right? Yes, ma'am. And teaching is always a good profession. A teacher can change everything. A good education can change anyone, but a good teacher can change everything. And teaching is a profession that teaches the all other professions, right? So as you know, teacher plays various roles in the classroom, in the school campus. So teacher is a instructor, teacher is always counselor, teacher is always a role model, teacher is always a counselor also. Anyone, you can add any point? Play of teacher, anyone? You can add? Ma'am, teacher is a nation builder. Yes, right, Gurpreet sir. Teacher is a nation builder. Yes. So teaching is a very good method, and teacher gives a impart knowledge which comes from our teaching, right? And we are doing very best, no doubt. But teachers, you know that we are doing our best, but we are not doing undefined duties properly. अनडिफाइंड ड्यूटीज मीन्स कि एकेडमिक पार्ट के अलावा स्टूडेंट्स का, बच्चों का जो दूसरा विकास है वो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो प्रॉपर स्कूल में उठने बैठने का तरीका सीख रहे हैं, बड़ों से बोलने का तरीका सीख रहे हैं, अपने मैनर्स को बिल्डअप कर रहे हैं. तो हमें इन पर भी वर्क करना होगा. वी शुड वर्क ऑन इट, राइट? यस टीचर्स, अनडिफाइंड ड्यूटीज, टीचर्स इज ऑलवेज A+ टीचर्स. इफ अ टीचर इज कंप्लीट देयर अनडिफाइंड ड्यूटीज, he or she included in A+ teacher. Yes. Now we are discussing about the focus areas. Primary role being a teacher, present status and importance, 10 undefined duties and future scope. Primary role being a teacher. No doubt we are doing our best. As I told कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, but अगर हम बात करें कि undefined duties की, कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ टीचर्स को हमें अभी भी अवेयर करना है कि वो अपनी अनडिफाइंड ड्यूटीज को प्रॉपरली करें, राइट? अगर हम अनडिफाइंड ड्यूटीज अच्छे से करते हैं तो इसमें क्या है, हमारे फुल इंस्टीट्यूट का ही ग्रोथ होगी, हमारी तो होगी, साथ साथ पेरेंट्स भी ग्रोथ करेंगे, अवेयर होंगे और स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे. ठीक है. सेकेंड इज कि प्रेजेंट स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस. प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो हम बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, बट जब हम अनडिफाइंड ड्यूटी की तरफ आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें नजर आती है, जिसको उभारने के लिए, आगे लाने के लिए जो आज का सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है. मैं जानती हूँ कि हमारे सभी टीचर्स बहुत हार्डवर्क हैं, कर रहे हैं बहुत अच्छा, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपसे अभी शेयर करेंगे और आपने उनमें इंप्रूव लाने की कोशिश करनी है. आई होप सो यू विल डू. नेक्स्ट इज 10 अनडिफाइंड ड्यूटीज. थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एक स्लाइड करके इसके बारे में डिफाइन करूंगी. और लास्ट है फ्यूचर स्कोप. क्या होगा, ये भी बहुत वास्ट एरिया है. आई होप कि इसके ऊपर एक और वर्कशॉप मैं लेना चाहूंगी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है मोरल वैल्यूज. मोरल वैल्यूज, देयर आर सो मैनी वर्ड्स इंक्लूडेड मोरल वैल्यूज. कौन कौन से हैं? रिस्पेक्ट, काइंडनेस, गुड स्पोर्ट्समैनशिप, केयरिंग, शेयरिंग. There are so many words included in the moral values. So कमी कहाँ पे आ रही है कि best thing is कि most important thing is to students do not respect to all, do not regard to all. Hidden issues are that कि students do not regard to all equally. Students क्या कर रहे हैं? Subject teacher, class teacher में differentiate कर रहे हैं. Subject teacher को इतना regard नहीं दे रहे हैं जितना वो अपने class teacher को regard दे रहे हैं. ठीक है. तो हमें उनके अंदर ये फीलिंग्स, ये बातें उनको सिखानी होगी कि उतना ही रिगार्ड वो डिजर्व करता है सब्जेक्ट टीचर जितना कि क्लास टीचर. नो डाउट कि क्लास टीचर के साथ स्टूडेंट्स की ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, बट सब्जेक्ट टीचर भी उतना ही हार्डवर्क कर रहा है अपने सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी उतना ही रिगार्ड स्टूडेंट्स का बनता है, राइट? और दूसरी बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप डी के मेंबर्स हैं हमारे, राइट, हेल्पर्स हो गए, गार्डर्स है, वॉचमैन है, ड्राइवर्स हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट टॉक प्रॉपरली विद देम. उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, इवन कि उनसे तू करके बात कर रहे हैं, उनका रिगार्ड नहीं कर रहे हैं. अगर वो कोई काम कहते हैं तो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने टीचर से पढ़ना है और चले जाना है. बट नो, उनको हमें ये समझाना है कि वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर हैं, तो हमें उनको भी
उतना ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना है जितना कि हम अपने टीचर को, क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें उनके अंदर ये बातें पैदा करनी है, उनके दिमाग में उनको रियलाइज करवाना है कि सबके लिए रिगार्ड जो है हमारा इक्वल चाहिए। नाउ गुड हाइजीन फॉर चिल्ड्रन, द बेसिक ऑफ पर्सनल हाइजीन्स आर वॉश हैंड्स प्रॉपरली, यूज हैंकी while they are coughing, wash hands before and after meal, wipe it properly, right? ये छोटी छोटी मतलब जरूरी बातें ये भी हमें उनको सिखानी होगी कि वो डेली हैंकी लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपने हैंड वॉश कर रहे हैं खाना खाने से पहले और बाद में या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो हाथ साफ नहीं करेंगे, हेल्दी खाना नहीं खा पाएंगे तो वो क्या है, डिसीज फ्री नहीं होंगे, बीमारियां लगेंगी तो स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा एब्सेंट होंगे तो क्या है, हमारी लर्निंग आउटकम्स नहीं आएगी, रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम उनको ये छोटी छोटी बातें बताते रहना। ये सिर्फ सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर का नहीं है, हमारी पूरी टीम का ही वर्क है, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर हैं, चाहे वो डांस टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं। व्हेन यू आर टेकिंग पीरियड, अगर आपकी पीरियड में रिसेस हो गई है या कुछ बायो ब्रेक है तो आप उनको इंस्ट्रक्ट करो कि स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू मेक अ लाइन एंड वॉश हैंड प्रॉपरली। लाइन में कैसे खड़े होना, क्यों में, ये भी हमें उन्हें बताना है, किसी को पुश नहीं करना, राइट? ये सारी बातें मोरल वैल्यूज में भी इंक्लूड होती हैं। सेकंड थिंग कि स्टूडेंट्स का पोस्चर कैसा है। पोस्चर मीन्स कि डिपेंड करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर, ओवरऑल हेल्थ, और इंक्लूडेड क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस आर बैक पेन्स, इंक्रीज आर एनर्जी, इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर उनका बैठने का पोस्चर सही होगा, इट मीन्स वो अच्छे सीधे बैठते हैं, उनकी बैक स्ट्रेट है, लिखते वक्त वो अपना ऐसे करके तो नहीं लिखते। ठीक है, तो ये प्रॉपर गैप भी हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम शुरू से ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा छोटा होता जैसे लिख रहा है वैसे, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है उसकी हैबिट्स हम छुड़वा नहीं पाए हैं, क्योंकि 6-7 आवर्स हमारे पास है स्कूल में। जब वो रिटर्न वर्क करता है, जो भी टीचर ऑन ड्यूटी है, तो आप देखो कि उसका पोस्चर कैसा है, उसकी बैक स्ट्रेट है, सीधा वो अच्छे से बैठ के लिख पा रहा है, उसका आई जो है और नोटबुक के बीच में जो डिस्टेंस है इक्वल है या नहीं है। अगर वो ऐसा कहीं लैग कर रहा है तो हम उसे बता सकते हैं। अगर वो फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अदर इशू है, राइट? लेकिन हमें उन छोटी छोटी बातों से स्टूडेंट्स को क्या है, अवेयर करवाना है, ताकि इन फ्यूचर जब वो आर्मी में जाए, पुलिस में जाए या किसी भी फील्ड में जाए, जब उसका मेडिकल हो या उसकी ऑब्जर्वेशन हो फिजिकली, तो वो कहीं लैक ना करे और कहीं उसको गिल्टी ना फील हो कि मेरे इस कारण से, मेरे इस बैड इफेक्ट से जो है मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई है। तो हम उनके लिए ये भी अच्छा काम साबित कर सकते हैं कि हम इन छोटी बातों का ध्यान रख के उनको क्या आने वाले फ्यूचर के लिए स्टैंड कर सकें। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यस और नो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग ऑन टाइम। बीइंग ऑन टाइम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. It included punctuality and discipline. It means कि students are taking too much time to eating food, to attempting their work, or too much time to make a line, right? कुछ स्टूडेंट्स की क्या हैबिट्स देखते हो आप लोग कि उनके लेजीज हमेशा खुले रहते हैं. आप असेंबली में लेके जा रहे हो, प्रॉपर वो जल्दी से लाइन नहीं बनाते हैं. टीचर बोले जा रहा है कि बेटा मेक अ लाइन, वो जल्दी से सुन नहीं रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं. तो ये पंक्चुअलिटी हमें उनको सिखानी होगी कि बीइंग ऑन टाइम, हर काम टाइम पे करना ही सही है. ठीक है, वो क्या है, लाइन ब्रेक करते हैं असेंबली में, आप 5-10 मिनट तो इसी में चले जाते हैं कि कुछ लोग लाइन से आउट हो रहे हैं, कुछ उसको ब्रेक कर रहे हैं. तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा. पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होगी तो स्टूडेंट्स क्या है, किसी चीज में भी लैग नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो आउटकम्स हैं बहुत अच्छी आएंगी. तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स जो है हर काम में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखते हुए साथ साथ जो है अपने काम में आगे बढ़ता चला जाए. Next is understanding adolescence. Understanding adolescence. It is the period of transition between childhood to adulthood. ये क्या टाइम पीरियड है जब बच्चा अपने बचपन से क्या है, वयस्क मतलब एक बड़े होने की ग्रोथ में आता है. और वेरी क्रूशियल पीरियड, दिस पीरियड इज वेरी क्रूशियल, जिसमें बच्चे में मेंटली और फिजिकली बहुत चेंजेस आते हैं.
ठीक है। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, वी शुड गाइड देम, वी शुड इंस्ट्रक्ट देम, कि हम उनके साथ हैं। जो जो फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं मेंटली, तो हमें एज ए फैमिलियर, एज अ फ्रेंड उनको समझाना है, उनको गाइड करना है कि ये होना स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो एज ए फ्रेंड उनको गाइड करना है। और मेन थिंग क्या है कि जो है, जैसा कि मैंने बोला कि टीचर इज ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। तो हमें क्या है, उनके सामने लूज टॉक नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं करनी जो बच्चे के सामने उस पर बैड इफेक्ट डाले। कई बार क्या होता है कि हम फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो मजाक मजाक में ऐसी बातें कर जाते हैं, बच्चे पास में बैठे हैं सुन रहे हैं, तो जिसका क्या है बैड इफेक्ट पड़ेगा, राइट। क्यों टीचर क्या करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। घर जाके आप लोग देखते हो ना कि बच्चे छोटे करते हैं, मैम बच्चा खेल रहे हैं, तो वो अपने मैम की वही एक्सप्रेशन, वैसी ड्रेसिंग सेंस, वैसे बाल कर लेते हैं। अगर हम लोग ही ओड अपने सारा दिन क्लास में बाल छेड़ते रहेंगे या अपना हमारा हेयर स्टाइल ओड होगा, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिखा पाएंगे, कैसे हम उनका रोल मॉडल बन पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है, हमारा प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, हमारा प्रॉपर हेयर कट, हमारे ईच एंड एवरीथिंग को स्टूडेंट क्या है कॉपी करते हैं। तो हमारा ऐसा इफेक्ट पड़े स्टूडेंट्स पर कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि इस स्टूडेंट्स टीचर से हम लोग पढ़े हैं, और वो घर जाके अगर हमें कॉपी भी करते हैं तो उनके पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि एक अच्छा टीचर जो मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है और उसमें क्या है बहुत कुछ सीख रहा है। और बाकी क्या है कि टाइम टू टाइम गुड टच बैड टच क्या है, ऐसे सेशन जो है कंडक्ट करवाए जाए स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो है अपने चेंजेस जो आ रहे हैं और इन सब बातों का ध्यान रख पाए। जब बच्चा कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं आउटसाइड जा रहा है, किसी बस में, ट्रेन में, तो इस तरह का अगर वो फेस कर रहा है तो उसको पता हो कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओवर पैम्परिंग। ओवर पैम्परिंग मीन्स कि बच्चे को ज्यादा पैम्पर करना, बच्चे को कमजोर बना देना उसके क्षेत्र में, ठीक है। अगर इफ स्टूडेंट इज ट्रेन्ड ओवर पैम्परिंग, देन ही विल नॉट अ गुड लीडर एंड ही विल नॉट टेक देयर डिसीजन, राइट। क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्षमता हम होने ही नहीं देंगे। अगर हम उसको पैम्परिंग ही करते जाएंगे कि नहीं बेटा मैं कर देती हूँ, आ जाओ आप टेबल पे, आपके साथ मैं खाना खाती हूँ, बाकी बच्चे अपना टेबल बेंच पे कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, एक या दो को आप अपने पास बैठ के टेबल पे काम करवा रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, उसको एक्स्ट्रा पैम्परिंग कर रहे हो, तो ये भी उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मैम तो इसको ही ज्यादा पैम्पर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनका भी मैम के लिए, अपने टीचर के लिए वो रिगार्ड जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैम तो मुझे इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं जितना कि इस बच्चे को पैम्पर करके बुलाते हैं, इसको अपने साथ खाना खिलाते हैं, इसकी नोटबुक पहले चेक करते हैं, कोई भी काम हुआ कि बेटे हाँ जी आप आ जाओ, पहले मैं आपकी चेक करती हूँ। तो ऐसा हमारी क्लासेस में, हमारे स्कूल में नहीं होना चाहिए। ओवर पैम्परिंग इज नॉट गुड फॉर ऑल। Next, very important and interesting, favoritism, nepotism. Favoritism, nepotism, it is very, nepotism is not here and there, it is everywhere in our minds. Those who prefer stance to talent and faces to quality. Stance means कोई पॉलिसी या कोई पोजीशन लेने के लिए अपने ही किसी खास, अपने किसी सगी संबंधी की फेवर में उसी को ही प्रेफर करना, ठीक है। कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी काम हो, अपने किसी रिलेटिव को या अपना जो आपका फेवरेट है, आपका जो आप स्कूल में टीच कर रहे हैं, आपका अपना बच्चा हो सकता है, आपके सिस्टर का बेटा, आपके ब्रदर का बेटा, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई सगा संबंधी, कि बार बार उसको ही आप मौके दे रहे हैं। कुछ भी काम है, कुछ भी इवेंट है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो बार बार आप उसको जब इंपॉर्टेंस देंगे तो क्या इंक्लूड होगा नेपोटिज्म में, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबको इक्वल मौका देना है, सबको आगे लाना है, ठीक है। नेपोटिज्म जो वर्ड है इसको हमने कम करना है, इवन कि इसको खत्म करने की कोशिश करनी है, ताकि बच्चे जो हैं सबको आगे आने का मौका मिले और किसी के अंदर ये फीलिंग ना आए कि मैम तो उसको ही अपना फेवरेट बना के रख रहे हैं, ठीक है। जब बच्चे के अंदर ये ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं
तो बच्चा क्या है, उसके माइंड में ऐसा इफेक्ट पड़ जाता है कि वो आगे जाकर उस टीचर के लिए उसका रिगार्ड तो खत्म होता ही होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं जाकर वो टीचर एक नफरत भरी नजर से उस टीचर को देखने लग जाता है जब वो बड़ा हो जाता है कि मैम ने, सर ने कभी मेरा तो रिगार्ड किया ही नहीं, मेरी तो बात सुनी नहीं, हमेशा ही अपने ही उस अपने रिलेटिव को या अपने पड़ोसी को कुछ भी इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं भी आगे आने की बात की है तो हमें तो आगे लाने का मौका ही नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, इस फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को खत्म करने की, कम करने की पूरी कोशिश करनी है। Yes. Our next point is belongingness. Belongingness means कि बच्चे को अपनापन महसूस करवाना, उसे अपनापन लगे, हमारी पिच, हमारी टोन, हमारा गैप ऐसा हो बच्चे के साथ कि जो, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर राकेश सहगल की वर्कशॉप में वो हमेशा कहते हैं ना कि बच्चे के साथ हमारी बॉन्डिंग, हमारा कनेक्शन ऐसा हो कि बच्चा जो है हमारे दिल को छू जाए और हमारी जो है बातें, अपनी बातें आपस में शेयर कर सके। अगर हम ऊंचा बोलेंगे बच्चे के साथ, लाउडली बोलेंगे, तो बच्चे का हमारे साथ कभी भी कनेक्शन वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें बच्चे के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जो क्या है, उसको बिल्ड कर सके। हमारा टारगेट क्या है, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, राइट। स्टडी में तो बनाना ही बनाना है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनडिफाइंड ड्यूटीज की, तो वो भी हमने बच्चे के अंदर हमें खुद पैदा करनी है। कैसे करनी है, जब हम उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाएंगे, ऐसा कनेक्शन बनाएंगे जो हमसे वो सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, अगर हम ऊंचा बोल रहे हैं तो बच्चा क्या है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है, उसका पूरा दिन क्या है, टीचर से उसने बहुत लाउडली बात की, टीचर ने उनसे, तो डिप्रेशन में चला गया या टेंशन में चला गया, तो जो आने वाला नेक्स्ट पीरियड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, राइट। तो क्या है, उसका ऐसा क्या हो सकता है, उसका पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। इवन कि वो घर पे जाके भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाता कि आज ये चुप क्यों है, क्या बात होगी स्कूल में। ठीक है, उसको लगा कि टीचर को बता दिया मैंने अपने पेरेंट्स को टीचर के बारे में, तो फिर और शायद डांटना पड़ जाए, टीचर मुझसे हेट ही ना करने लग जाए, मेरी बात ही ना माने। हमें क्या है, टीचर को बच्चे के साथ ऐसा एहसास बनाना है, ऐसी बिलोंगिंगनेस बनानी है ताकि हमारा जो रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मदर टीचर जो है उनको तो अच्छे से पता है क्योंकि वो सारा दिन अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, उनका अलग रिलेशन है। बट जो सब्जेक्ट टीचर चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, तो एक टीचर अपना करवा के चला गया, जब दूसरा टीचर आता है वो वैसे ही बिहेव करे जैसे एक क्लास टीचर उसके साथ है। आते नहीं कि हम अपना लेक्चर डिलीवर करने लग जाएं, हम बच्चों से बात करते हैं, उनको देखते हैं कि कौन बच्चा किस तरह से बैठा है, हम उनकी आंखों से पढ़ लेते हैं कि आज वो ठीक है या नहीं, आज वो पढ़ के आया है या नहीं, आज कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जब ये हम सब बातें ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तब मान लेंगे कि हम एक अच्छे टीचर वाली लाइन में हम आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंजीनियल एनवायरनमेंट मीन्स वेल सूटेड, अनुकूल वातावरण। क्लास में कैसा वातावरण हो, कैसा एनवायरनमेंट हो जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। मीन्स प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर फैंस हो, ये नहीं कि कुछ बच्चे हैं जो इस तरह ही बैठे रहे कि उनको पंखे की हवा ही नहीं लग रही। ये किसने ध्यान रखना है, हमने ध्यान रखना है, टीचर ने ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को दूसरी साइड फैन, हमारे रूम में 4 है, बेंचेस की पोजीशन सही नहीं है, तो आप आके उसको चेंज करवाओ, बच्चे के कंफर्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर दो जिससे बच्चे को अच्छे से हवा लग पाए। जो ब्लैक बोर्ड है हमारा वो प्रॉपर विजिबल हो स्टूडेंट्स को। क्या होता है, कई बार रिफ्लेक्शन ऐसी होती है, विंडो ओपन है या कर्टन इस तरह की कि बच्चे को दिख नहीं पाता, तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड विजिबल है या नहीं, बेंच उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, हाइट वाइज उसके बेंच है या नहीं। आप देखते हो ना, कुछ बच्चे क्लास में छोटी हाइट के हैं, कुछ लोग बच्चे बड़ी हाइट के हैं, तो इक्वल बेंच अगर हम रख दें तो आपने कभी देखा है कि जो छोटे बच्चे बहुत मुश्किल वर्क करते हैं वो ज्यादातर क्लास में खड़े होकर काम करते हैं। 4th डायमंड में है ना मनकीरत, अरमान, 2nd में है मंजू मैम की क्लास में मयंक, बहुत छोटा है वो, तो आप देखो कि वो बेंच पर बैठ के उनकी प्रॉपर जो डिस्टेंस नहीं बन पाता, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पाती, तो किसने ध्यान रखना है, हमने। आप लोग जाओ तो डिमांड दे सकते हो कि बच्चे छोटे हैं, इनके लिए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बेंच रखे जाएं या उन बच्चों को आगे बिठाया जाए, बड़े बच्चे हैं वो पीछे। ऐसा भी नहीं कि बड़े ही डेली पीछे बैठे, या फिर जिन बच्चों को प्रॉपर दिखता नहीं है ब्लैक बोर्ड, जो विजुअल नहीं है, तो क्या करें कि आप उनको भी टर्न वाइज कोशिश करें, उनके पार्टनर चेंज करते रहे, उनको हमने ज्यादा आगे बिठाना है। 4th रूबी में कुलदीप मैम की क्लास में आई थिंक तमन्ना और प्रिंस
जिनको क्या है कि ब्लैक बोर्ड अच्छे से नजर नहीं आता, तो मैम क्या करते हैं, इसलिए उनको आगे बिठा देते हैं और उनके साथ वाला पार्टनर डेली चेंज कर देते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से ब्लैक बोर्ड विजिबल हो जाए और बच्चे को ये लगे भी ना कि मेरे अंदर ये कमी है तो मैम मुझे यहाँ बिठा रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप बच्चे का कंफर्ट देख सकते हैं, किसके, बच्चे का, और हम लोग ही इसको चेंज कर सकते हैं, हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा एनवायरनमेंट क्लास का होना चाहिए वेल सूटेड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। यस डियर टीचर, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज गुड पेरेंटिंग, और मैं चाहूंगी कि एक आपकी मैं और वर्कशॉप लूं जिसमें आपको मैं गुड पेरेंटिंग पर कुछ नए टिप्स बताऊं। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड and I would like to thank you to my audience and my dear fellows for their patience. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Dear teachers, जिंदगी हर पल ढलती है, जिंदगी हर पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, जिंदगी हर पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो किसी से, शिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक बार ही मिलती है, बस एक बार ही मिलती है। A teacher is a compass. A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge and wisdom. The mediocre teacher tells, a good teacher explains, the superior teacher demonstrates, but the great teacher inspires. I think we all are great teachers. Thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਨੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਮ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਮੋਤੀ ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਵਰਗੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਲਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਹਾਫ ਐਂਡ ਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹਦੀ शुरुआत मैं एक मशहूर शायर नाल करांगी। गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं कुछ आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, यूं तो चांद तारों की तारीफ करना आसान है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अंदाज कहाँ से लाऊं। हरपाल मैम ध्यान नाल सुनियो। किसी दूर पहाड़ पर चांद की डाल पर सुनहरी चिड़िया का घोंसला हो तुम, युद्ध के रथ पर नए शिक्षक के पथ पर मेरे जैसे हजारों का हौसला हो तुम, कल जो सुना गगन का ख्याल हो तुम, ये सच है कि अपने आप में बेमिसाल हो तुम। जैसे कोई शेर तमुन से पढ़ा जाए, जैसे कोई बेगाना पहली नजर में भा जाए, जैसे बिछड़ा कोई अरसों से अचानक घर आ जाए, जैसे बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी को महका जाएं, ऐसा सुखद एहसास हो तुम, यह सच है कि अपने आप में बेमिसाल हो।
दोस्ती गृहिणी, कौशल प्रतिभा, दृढ़ता का मतलब तुमने बताया, जीतकर ऑक्सफोर्ड अवार्ड तुमने परचम लहरा दिया। हर घड़ी हर बार एक उत्तम विकल्प हो तुम, आंधियों में जलते चिराग का संकल्प हो तुम। हर रिश्ते की नींव में बसा विश्वास हो तुम, ये सच है कि अपने आप में बेमिसाल हो तुम। और अब मैं क्या लिखूं, और अब मैं क्या लिखूं, आपको एम्पीरियल के आंगन का महकता गुलाब लिखूं, सरताज की सूफियत का अंदाज लिखूं, शिव की कविताएं और रफ़ी के नगमे, चलो ये सूरज चांद सितारे सब कुछ तेरे नाम लिखूं, क्योंकि मेंटर स्टॉक की शान हो तुम, मेंटर स्टॉक की शान हो तुम। यह सच है कि अपने आप में बेमिसाल हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਰਵੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਮੈਮ।